بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. محمد علی درانی صاحب تشریف لائے ہیں. ایک دیرینہ تعلق ہے ان سے ملنے جلنے کا. کسی قسم کی کوئی پروٹوکول کا پابند نہیں ہے. آج چونکہ مجھے یہاں لاہور آنا تھا تاکہ کل کے پی ڈی ایم کے اجلاس میں شرکت کر سکوں، لیکن درانی صاحب پہلی سی گھات لگائے بیٹھے تھے اور وہ تشریف لے آئے ہیں. تو اب یہ کہ ان کی تشریف آوری جو ہے وہ کسی ایجنڈے پہ ہے، اس کے لیے میرے خیال میں اگر خود ہی ارشاد فرما دیں تو بہتر ہوگا. آپ سے بعد میں سوال کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پہلے تو مولانا کا بہت شکر گزار ہوں، اور میرا تعلق ایک گھر کے فرد کا تعلق ہے جس کی بنیاد پر میں بغیر کسی پروٹوکول کے حاضر ہو سکتا ہوں. میں مولانا کے پاس پیر صاحب پگاڑا کی طرف سے پیغام لے کر آیا تھا جس میں کہ ان کی یہ خیال ہے کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اس کے اندر ٹکراؤ کو بچانے کے لیے نئے راستے سوچنے چاہیے اور نئی تدابیر نکلنی چاہیے. اور اس کے لیے ہم نے ٹریک ٹو ڈائلاگ کا بھی ایک موقف رکھا، اور اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی رکھا کہ اس وقت استعفے اور جو باقی جتنے بھی معاملات ہیں ان کے اوپر بھی ایک ڈائلاگ ہونا چاہیے جو کہ انٹرنلی پارٹی کے اندر ہو رہا ہے اور سب جگہ. اس پہ ہماری تفصیلی بات چیت ہوئی، اور میں اس سلسلے میں مولانا کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت بھی دیا، اور اس سارے ایشو پر ہماری بہت سیر حاصل گفتگو ہوئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل کے راستے اختلاف میں سے نکلا کرتے ہیں، اور اختلاف کا اظہار جو ہوتا ہے وہ ڈائلاگ کا آغاز ہوتا ہے. اور مولانا سے جو رشتہ ہے، تعلق ہے، اس میں اس معاملے میں کوئی ہمیں وہ نہیں ہے. تو میں آج کی میٹنگ کو بہت ہی ایک مفید میٹنگ سمجھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے عمل سے جو ہے جو ہم کر رہے ہیں اس سے انشاءاللہ آگے بڑھنے کے بہت سے راستے اچھا درانی صاحب، یہ بتا دیجیے گا، پہلے آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ بتا دیجیے گا کہ آپ جو آج کی ملاقات ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے اختلاف ہوا ہے یا دونوں میں اعتماد بڑھا ہے آگے بڑھنے کا، یہ دونوں ایک بات پر متفق ہوئے ہیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں جی، جب میں نے یہ ڈائلاگ شروع کیا تھا اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ اس ڈائلاگ کبھی بھی کسی ڈائلاگ کا آغاز جو ہے وہ اتفاق سے نہیں ہوا کرتا، پھر تو ڈائلاگ کی ضرورت ہی نہیں رہتی. اختلاف سے ہی ہوتا ہے، یہاں بھرپور اظہار ہے ہر چیز کا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اظہار جو ہے مجھے روز روشن کی طرح نظر آ رہا ہے کہ آگے یہ ایک روشن اتفاق میں بدلے گا، اور نیا سال جو ہوگا وہ اتفاق کا سال ہوگا اور اتحاد کا سال ہوگا، اور وہ راستے نکلیں گے جو حقیقی ملک میں جمہوریت اور عوام کا مفاد لائیں گے. آج عوام کی جو مشکلات ہیں ان کو ختم کرنے میں میرا خیال ہے کہ یہ جو کردار ہے مولانا کا اور سب لوگوں کا، یہ بہت اہم کردار ہے. اچھا درانی صاحب، یہ بتا دیں کہ آپ ایک گرینڈ ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں. گرینڈ ڈائلاگ دونوں طرف سے ہوتا ہے. آپ نے ابھی تک شہباز شریف صاحب سے بھی ملاقات کی، آج مولانا صاحب سے بھی ملاقات کی. جو ڈائلاگ کے دوسری طرف ہیں ان کی طرف سے کوئی بات ہوئی کیا؟ وہ ابھی میرا سوال سن لیں، کیونکہ ابھی تک جو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات کے راستے دروازے بند ہیں، اب ہماری شرائط پر مذاکرات ہوں گے. حکومت کی طرف سے کوئی ایسا بندہ جس سے آپ کس حوالے سے بات ہوئی ہو؟ آپ ایک فریق سے بھی مل رہے ہیں، دوسرے فریق کی ابھی تک حکومت بھی مذاکرات کرنا چاہتی ہے؟ دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے شروع سے یہ بات کہی ہے کہ جناب اصل بات یہ ہے کہ اس وقت جو گرینڈ ڈائلاگ ہے ابھی وہ شروع کرنے سے پہلے اس کی ایجنڈا سیٹنگ کی ضرورت ہے، اور ایجنڈا سیٹنگ کے لیے ہم نے ٹریک ٹو ڈائلاگ کا کانسیپٹ دیا جس پہ ہم اختلاف کو سامنے لائیں گے اور اختلاف میں سے اتفاق کے راستے نکلیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت بھی ڈائلاگ نہ چاہتی ہو اور اپوزیشن بھی نہ چاہتی ہو تو پھر ڈائلاگ جو ہے وہ مملکت کے لیے ضروری ہو جاتا ہے، اور اس کے راستے نکالنا اور اس کی صورتیں بنانے کے لیے یہ حکمت سے چلنے والا کام ہے. کوئی ہم ایک دم سے اچھل کود کے اندر نہیں نکلے. اور میں سمجھتا ہوں کہ گرفتاریوں کا عمل جو اس وقت ہو رہا ہے
नैब के सूरत में, उससे इत्तफाक के रास्ते बनाने में बहुत मुश्किलात हो रही हैं, क्योंकि एहतसाब जो है वो अदालत का काम है, हुकूमत का काम नहीं है। इतनी बात मैं ज़रूर करता हूँ। अच्छा मौलाना साहब ये बताइएगा, आपकी इनसे मुलाकात आज हुई है, इससे पहले शहबाज शरीफ से भी ये मिले हैं, आप समझते हैं कि जो इनसे आपकी मुलाकात है वो हुकूमत से मुज़ाकरा या हुकूमत को हटाने में वो मदद मिल सकती है आपको? जो आपको देखिए, जहाँ तक है दुरानी साहब की सोच या GDA की क़यादत की सोच, तो एक मुस्बत सियासत की अलामत कहा जा सकता है इसको, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं और उस ज़मीनी हक़ाइक़ की बुनियाद पर PDM का मौक़िफ़ क्या है। हमारा वाज़ेह एक मौक़िफ़ है कि यह हुकूमत धांधली की पैदावार है, यह हुकूमत आवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। वो मुज़ाकरात करेगी तो किसकी नुमाइंदगी करते हुए करेगी। लिहाजा इस जाली हुकूमत के साथ मुज़ाकरात को तो बहरहाल हमने सरदस्त खारिज इम्कान करार दिया है, लेकिन अगर दुरानी साहब मुसिर हैं इस बात पर, तो देखें कब इसकी इफादियत वो हमें समझा सकेंगे। तो अच्छा दुरानी साहब ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात हो गई, मौलाना साहब से भी मुलाकात हो गई, अब बिलावल से मुलाकात के लिए आप बिलावल हाउस जाएंगे कि उनके भी लाहौर आने का इंतज़ार करेंगे? देखिए, मुलाकात का कोई शेड्यूल अनाउंस नहीं है। ट्रैक टू डायलॉग का मतलब ही यही होता है कि जी हम अपनी बात खामोशी से करते हैं। अब आज मैं यहाँ आया, किसी को पता नहीं था, ना मैंने किसी को बताया था, ना यहाँ, बस वो फिर भी जो मेहरबान आसपास खड़े होते हैं वो आप तक खबर पहुँचा देते हैं। बिलावल से मुलाकात के हवाले से बता दें सर। एक तासुर बन रहा है कि पीपल्स पार्टी रिज़ाइन नहीं करेगी, उनके पास एक ऑक्सीजन आ रही है सिंध हुकूमत की, वो उसको कभी बंद नहीं होने देगी। तो अगर PDM इस्तीफ़ों की तरफ जाती है तो पीपल्स पार्टी साथ होगी आपके? देखिए, उन्होंने एक बड़ी मुस्बत बात कही है अपनी CAC के इजलास के फ़ौरन बाद फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कुछ हमारी तजावीज़ हैं और फिर जो फ़ैसला PDM का होगा वही हम सब का होगा। तो कल जब इजलास में उनकी तजावीज़ सामने आएंगी तो उसके बाद ही फिर इस पर बात हो सकेगी। सरदस्त तो हम ये समझते हैं कि उन्होंने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तमाम तब सूरत हाल की जो बुनियाद और असास है वो 20 सितंबर की APC का एलामिया है, जिसके अंदर लॉन्ग मार्च भी है, जिसके अंदर इस्तीफ़े भी हैं और ये सारे ऑप्शंस वहाँ मौजूद हैं। अब उसको एक हमने स्ट्रेटजी की शक्ल देनी है उसको, और उस हवाले से तमाम पार्टियाँ जो हैं वो मुकम्मल तौर पर सूरत हाल से बाखबर हैं। तमाम पार्टियाँ इकट्ठी होंगी, उनकी क़यादत इकट्ठी होगी और इस पर तबादला ख़याल होगा जो काबिल अमल सूरत हाल होगी। मौलाना साहब डेट थी 31 दिसंबर, आज वो मुकम्मल होने जा रही, तो इस्तीफे आपकी पार्टी के इस्तीफे सब जमा हो चुके हैं हमारे। अच्छा मौलाना साहब एक चीज़ बात कर, अच्छा मुकम्मल कर लें बात आप। मैंने कहा कि हमारे इस्तीफे तकरीबन तमाम पार्टियों के पास अपने मेंबरान के इस्तीफे पहुंच चुके हैं। ठीक है। अच्छा मौलाना साहब और मौलाना हाफिज हुसैन अहमद कसाब की तरफ से जो JUI को डैमेज किया जा रहा है, आप समझते हैं कि इससे PDM की जो मूव है उस पर कोई असर पड़ेगा इसका नेगेटिव? मेरे ख्याल में हम इससे मजबूत हुए, जो जो डंट था वो उखड़ गया है, ख़त्म हो गया है। अब तो गाड़ी बड़ी मजबूती के साथ और यकसुई के साथ अपनी दाखिली मुश्किल को बाहर फेंक कर अब हम बड़े यकसुई से आगे बढ़ रहे हैं इंशाअल्लाह। मौलाना साहब आप तो मजबूत साबित हो रहे हैं, लेकिन मौलाना आपके जो कुछ साथी हैं वो आपको छोड़ के गए, उसके बाद पीपल्स पार्टी के इख्तलाफात सामने आए, उसके बाद हमने देखा कि जो 2 मुस्लिम लीग नून के MNAs ने इस्तीफ़े दिए थे उनके भी बयानात कुछ सामने आए, तो बज़ाहिर तो ये तासुर मिल रहा है कि PDM जो है वो मजबूत नहीं रही। देखिए, इस ओपन मीडिया की दुनिया में इस किस्म की छोटी मोटी खबरें उड़ती पुड़ती सूरत हाल को अजीब, लेकिन इस पर कोई बुनियादी सियासी सूरत हाल पर असरअंदाज नहीं होंगी। बात है सियासत जो है वो
मजमूई फैसलों का नाम है और फ़र्द की फिर राय को नहीं देखा जाता। आवाम उन पार्टियों के उस फैसले को देखते हैं, उस पॉलिसी को देखते हैं, उस पार्टी के अंदर किसी एक फ़र्द की ज़ाती एक्शन को नहीं देखा करते लोग। अच्छा दुरानी साहब ये बता दें कि ट्रैक 2 की जो बात की जा रही है, तो क्या उसमें इस चीज़ की भी यकीन दहानी कराई जाएगी कि जो अपोजिशन है, उनके जो रहनुमाई लीडर्स हैं, उनको भी रिलीफ फराहम किया जाएगा, क्या इस पर भी गौर किया जा रहा है? देखें, अपोजिशन कोई रिलीफ नहीं मांग रही। अपोजिशन साफ सी बात है, वो अपने मौक़िफ़ पे डटी हुई है। उनका ख्याल है कि आवाम में उनकी मकबूलियत दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, इसलिए मैं किसी रिलीफ के मिशन पे तो हूँ नहीं, ना कोई रिलीफ मांग रहा है। हमारा तो मुल्क का इशू है, इस मुल्क के अवाम का इशू। दुरानी साहब एक बात बताइएगा, आप उस मौके पे मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं और करना चाह रहे हैं, जब महंगाई बेइंतहा बढ़ चुकी है, मुल्क की मईशत तबाह हो चुकी है, मुल्क की बदनामी पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में हो रही है, फिर आप ये इन्हें क्यों राज़ी करना चाह रहे हैं कि मुज़ाकरात करें और मुज़ाकरात से हल हो? ये तो कह रहे हैं कि हुकूमत जाएगी तो मुल्क बचेगा वरना नहीं बचेगा। इसके साथ ये भी कि आप हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा भी हैं, तो आपका हुकूमत की तरफ को पैगाम तो नहीं है ये? देखें जी, हमारा जो पैगाम है वो पाकिस्तान के अवाम की तरफ से है। पाकिस्तान के अवाम के वो जज्बात हैं जो आपने बयान किए हैं कि वो इस वक्त मुश्किल में। हम समझते हैं कि मुश्किल से निकलने के लिए आखिर में तो फिर मुज़ाकरात ही करने पड़ते हैं, और ये मुज़ाकरात जो हैं ये रियासत की सतह पे होने चाहिए, और ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो चाहते हैं कि इस वक्त एक रास्ता निकले कि आवाम की मुश्किलात कम हो सकें और इस मुल्क के अंदर जो एक टकराव की कैफियत बनी हुई है उससे निजात हासिल। अच्छा दुरानी साहब, मोहम्मद अली दुरानी साहब से इंतहाई अदब व एहतराम के साथ, हुकूमत के साथ इस वक्त मुज़ाकरात की बात करना आवाम को मायूसी की तरफ धकेलने वाली बात है, जो मुल्क की मईशत को ज़मीन बोस कर चुकी है। और आप अगर एक कामयाब खारजा पॉलिसी चाहते हैं तो उसके लिए भी रियासत का इक़्तिसादी लिहाज से ताकतवर होना ज़रूरी होता है, और इक़्तिसादी क़ुव्वत के साथ आप दुनिया के मफादात अपने साथ वाबस्ता करते हैं। आज कोई दुनिया, चाहे आपका पड़ोसी है चाहे पड़ोसी का पड़ोसी है, वो आपसे किसी तरीके के ताल्लुकात कायम करने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया की मईशत इस वक्त वो आलमी मालियाती इदारों के पास है, चाहे वो IMF है, चाहे वर्ल्ड बैंक है, चाहे FATF है। आप बताएं, इन 2 सालों में उन्होंने एक पैसे की मदद पाकिस्तान की नहीं की, बजाय इसके कि वो मदद करें वो मुसलसल पाकिस्तान पर दबाव डाल रहे हैं, और वो पाकिस्तान गवर्नमेंट के और यहाँ की रियासत की इक़्तिसादी पॉलिसियों से मुतमईन नहीं है। आपको अपनी दोस्ती में सऊदी अरब ने पैसे दिए ताकि आपका ज़र-ए-मुबादला के ज़ख़ीरा बने, आपको मुत्तहिदा अमारात ने पैसे दिए, आज वो अपने पैसे वापस मांग रहे हैं, बल्कि मांग लिए हैं, और उन पैसों की अदायगी के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं। आपने वो पैसे चाइना से मांगे, चाइना आपको पैसे दिए, लेकिन मुझे बताएं कि ये भी क्या पब्लिक को बताया गया है कि चाइना ने आपको जो पैसा दिया है वो इमदाद नहीं है, वो कर्ज़ा है, और दुनिया की मौजूदा और उसकी तारीख़ की सूद की सबसे बुलंदतरीन शरह 14% की शरह से आपको उससे कर्जा दिया है। अब आप कहेंगे हमारा दोस्त है, हमारे साथ क्या किया? तो CPF पर आपने उनके साथ क्या किया है? कोई दोस्त तो आपने रखा नहीं है। कल जो हिंदुस्तान मीनार पाकिस्तान पर खड़े होकर हमसे तिजारत और कारोबार के हवाले से भीख मांग रहा था, वो भी तो BJP था। आज उसी BJP का रवैया क्या है? वजह यह है कि उस वक्त आपकी इक़्तिसादी पोजीशन मजबूत थी, आपसे लोग दोस्ती चाहते थे, अफ़गानिस्तान आपसे दोस्ती चाहता था, ईरान आपसे दोस्ती चाह रहा था। आज पड़ोस का कोई मुल्क आपसे ताल्लुक़ रखने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आप बेफ़ायदा हो चुके हैं, आपके ताल्लुकात उनके लिए मुनाफ़े बख्श नहीं रहे हैं। तो ऐसे हुक्मरानों को और ऐसी हुकूमतों को मुल्क पर मुसल्लत रहना, ये पाकिस्तान की तबाही की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। और इस पर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जितने इदारे हैं
चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो सिविल ब्यूरोक्रेसी है, चाहे हमारे जितने भी इधर शोबे हैं, उन सब से वाबस्ता लोगों को एक पेज पे आज होना चाहिए कि इस किस्म की नाअहल हुकूमत को अगर एक दिन मज़ीद मिलता है तो हम एक दिन मज़ीद ज़मीन में धंसते चले जाएंगे। आप गड़ी खुदा बख्श नहीं गए और कल बिलावल भी नहीं आ रहे, तो ये क्या माजरा है? कोई नाराज़गी है? देखिए मीडिया वालों, खुदा के लिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, कभी हमें जलसे में जाना है, कभी नहीं जाना, किसी में शरीक होना है, किसी में शरीक नहीं होना, और ये रिलैक्सेशन हमने एक दूसरे को खुद दी हुई है, तो फिर हर जलसे पर इशू पैदा करना, फलाना नहीं किया, फलाना नहीं आया, फलाना नहीं। कितने जलसों में जरदारी साहब, बिलावल साहब ने वीडियो लिंक से तकरीर की है, कितनी मीटिंगों में हमारे मियां नवाज शरीफ साहब ने वीडियो लिंक से तकरीर की है, आसिफ जरदारी साहब ने लिंक से की है, हमारे दूसरे हजरात अख्तर जान मैंगल साहब और कोई भी। तो कोई इस तरह की सूरत हाल नहीं पैदा की जाती कि आप कंपल्सरी किसी को कहें कि आपने हाज़िर होना है और क्लास में हमने आपसे हाज़िरी लेनी है और आपने कहना है साहब हाज़िर हाज़िर। ये कैफियत नहीं हुआ करती। बड़े छोड़ लोग हैं, सियासत को उसके मुकाम पर रहने दो। बड़े लोग हैं, उनके अपनी एंगेजमेंट्स होती है, उसकी भी मजबूरी हुआ करती है। हुकूमत आपके असासे सामने लाई है और कहा यह जाता है कि नैब आपको नोटिस जारी करेगा और आपको मेरा असासा आप भी हैं। आप अगर नैब आपको बुलाते हैं तो आप जाएंगे? नैब अगर आपको तलब करती है तो आप जाएंगे? पहले उनको ये जरूरत ही नहीं है, ज़रा आप मुतमईन रहें, ऐसी कच्ची गोलियां हमने भी नहीं खेली हैं आज तक। तो आप सब मेरा असासा हैं, आपका भी हिसाब लिया जाएगा कि ये असासा कहाँ से आया है। और जो डायलॉग की सोच आप लेके निकले हैं, आपको क्या लगता है कि कितने आप पूरी उम्मीद है कि इसमें कामयाब हो जाएंगे? मैं तो मेरा भी इस पॉइंट के लिए नेशनल डायलॉग की जो बात करें तो वो बड़ी अच्छी चीज काविश है आपकी। इस सूरत हाल में ये अमेंडमेंट किसने दिया आपको, किसके कहने पे चले, तो ये सब चीज़ें थोड़ी एक्सप्लेन। आप कितने पूरी उम्मीद है कि इसमें कामयाब हो असल सवाल यही है। देखिए जनाब, बात ये है कि पीर साहब पगाड़ा ने मेहरबानी की, उन्होंने ये असाइनमेंट मुझे दी। जहाँ तक उम्मीद का सवाल है, मैं आपको ये फ्रैंकली बताऊँ, मौलाना से आज मिला हूँ, मेरी उम्मीद बड़ी है कि पाकिस्तान के लिए जो क़यादत की सोच है, इवन शहबाज साहब से भी जब मेरी बात हुई थी, उन्होंने एक बात, जो कि बाकी सब बातें उन्होंने कहा जी जो मौलाना का फ़ैसला होगा, PDM का फ़ैसला होगा, हमें कबूल होगा। एक बात उन्होंने कही कि मैं पाकिस्तान की मईशत के बारे में बहुत फ़िक्रमंद हूँ। वही बात आज मौलाना ने भी फरमाई। इसलिए मैं ये समझ रहा हूँ कि कौमी सोच इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के अवाम पे मरकूज़ है। अब हम आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। मैं कुछ कह नहीं सकता, मेरे भी बहुत से जज्बात हैं, पहले कैसा रहा, लेकिन दुरानी साहब, आप मौलाना साहब, आप इनकी निगरानी मौजूदगी में मौलाना आप एक वाज़ह करते हैं बात, किस निज पे या किस शराइत पे हुकूमत से या अब अरबाब इख्तियार से जो आप समझते हैं बेहतर, उनसे किस बुनियाद पे मुज़ाकरात हो सकते हैं? देखिए, मुज़ाकरात की बात तो मैंने कहा कि खारिज इम्कान है हमारे यहाँ। हाँ, ऐलान कर दें कि मैं मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ और नए इंतखाब का शेड्यूल दे रहा हूँ। चलें ठीक है, इंतखाब का शेड्यूल आ जाएगा, उसके बाद फिर देखें कोई तजवीज़ आती है तो हुकूमत की तरफ से बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।